Hey, hey, welcome back. Thank you for joining us. Okay, now we have covered parts of speech. So, very well done, guys. Pat on your back. Really, really good progress. Thumbs up from me. Okay, very good. Today, before we end the day, we are going to cover subject verb agreement. And that will be the last topic for the day. ठीक है, मुझे पता है थोड़े थक गए होंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें कंप्लीट करना है आज ही. ऑलराइट, डे 1 टॉपिक. हाउएवर, नो रश. अगर आपको लग रहा है कि आपको वापस जाना है और पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार और सुनना है, एब्सोल्युटली प्लीज पॉज दिस वीडियो, गो बैक, लिसन एंड रीड अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वन मोर टाइम. आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट. बट जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ग्रेट, थम्स अप. जो लोग रुक के पीछे देखना चाहते हैं, दोबारा पार्ट्स ऑफ स्पीच करना चाहते हैं, उनके लिए भी थम्स अप, because both ways we will learn. That's the fascinating thing about this, isn't it? Okay, so today's topic, or last topic for the day, is subject verb agreement. इसके हमने थोड़ा सा बात करी थी, but today we are going to learn about this, and then we will move on to the rules of subject verb agreement. Yeah? Okay. Before we get there, let me tell you what we have done so far. So what we agreed on, what we discussed, what's in it for me, was parts of speech, which we have done. Yeah. Moving on to subject verb agreement, which we are going to cover right now, and then tenses and fluency, which we will cover tomorrow. That is day 2. Okay. So आज का topic है subject verb agreement. इसके बाद day 1 ends. Let us begin. Before we move on to subject verb agreement, I want to ask you, what do you think is a sentence? Sentence. क्या है sentence? You can pause this video and I would really want to know आपका क्या विचार है sentence को लेके. तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, और कमेंट सेक्शन में अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से मेरे को बताइए, what do you mean by sentence? What is sentence as per you? Okay, I'm waiting here. You can pause this video and go ahead and write what is sentence. No, really, go ahead and write in whatever way. There is no wrong answer here. तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी डेफिनेशन लिख ली होगी कमेंट सेक्शन में. आगे बढ़ते हैं. So what is a sentence? उससे पहले let's look at this image. What do you see? Now we see divers here, skydivers, है ना. Skydivers जो कि अपने में खुद से drivers हैं, लेकिन when they join together they form a formation. ठीक उसी तरह every word that you see in English language has a meaning, but when they come together and form a meaning together is what we call sentence. हर शब्द का एक meaning होता है, लेकिन जब वो शब्द सारे मिलकर एक सेंस बनाते हैं, उसको हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं. सिंपल इनफ, राइट? सेंटेंस. ठीक इसी तरह जो स्काई डाइवर्स कर रहे हैं, इंडिविजुअली डाइवर्स हैं वो, लेकिन मिलके एक फॉर्मेशन बना लिया. और उसी तरह वर्ड्स भी इंडिविजुअली मीनिंग कैरी करते हैं, लेकिन अगर मिलके सब एक सेंस फॉर्म करते हैं, तब उसको हम सेंटेंस कहते हैं. Simple enough, isn't it? Good. Let's move ahead and let's dive into the rules of subject verb agreement. Now, rule number 1. There are 7 rules, let me tell you, ladies and gentlemen, जो हम आज पढ़ेंगे और सीखेंगे. 7. However, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, rule number 1, that is it. ये ही रूल से हम बाकी सारे रूल्स को फॉर्म करेंगे और उनके मतलब को समझेंगे. बाकी सारी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, so on and so forth, लेकिन जो क्रक्स ऑफ द मैटर, या जो कि जो हमारा कोर रहेगा अंडरस्टैंडिंग, वो यही रहेगा. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. अगेन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. Question that you should be asking right now is, what makes a subject singular and what makes verb plural? Again, what makes a subject singular and what makes the verb plural? कैसे एक सब्जेक्ट
जो है प्लूरल बन जाता है, ओके, और कैसे एक वर्ब सिंगुलर या प्लूरल बनती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, आपको याद है हमने अब एक स्लाइड देखा था जिसके अंदर 3 कॉफी मग्स थे, ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, दे ड्रिंक। आज अभी देखा, आज ही के दिन में देखा है हमने सुबह, है ना, याद आ रहा है थोड़ा सा? हाँ, और मैंने कहा था हम लेटर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और मैंने ये भी बोला था कि जिन्होंने ये नोट किया हो कि वो एस कहाँ गायब हो गया, वो अपने कमेंट सेक्शन में लिखे। सो चलिए उसको अब डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब जो है ये बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तभी तो अग्रीमेंट है ना, अच्छे पार्टनर्स हैं तभी अग्रीमेंट है। लेकिन ये लोग बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं, जैसे कि लेट्स लुक एट दिस, डॉग चेजेस द कैट। अब यहां पे डॉग जो है वो सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, एंड चेजेस इज अ वर्ब, और वो भी सिंगुलर है। थोड़ा समझ में आया? एक और इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं, एंड देन विल कम बैक टू डिस्कस दिस, ओके। नाउ लुक एट दिस, प्लूरल सब्जेक्ट, द डॉग्स चेज द कैट। यहां पे डॉग प्लूरल होके एस लग गया उसमें, तो वो डॉग्स बन गया। लेकिन वर्ब चेजेस से, जो कि सिंगुलर था पुरानी पिछली स्लाइड में, अब चेज हो गया। दैट मीन्स subject verb are best of friends who does exactly the opposite of what one does. तो जहां पे जो सब्जेक्ट है जब वो सिंगुलर होता है वो अपना एस ड्रॉप कर देता है, वर्ब उसको अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको यूज करता है, जैसे कि द बॉय रीड्स अ बुक। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो वर्ब अपना एस पीछे छोड़ देता है। दैट मीन्स द बॉयज रीड अ बुक, यहां पे बॉयज हो गया प्लूरल सब्जेक्ट और रीड हो गया प्लूरल वर्ब। एक बार फिर से, द बॉय रीड्स अ बुक, यहां बॉय सिंगुलर है तो वर्ब में एस लग गया, और जहां बॉयज में एस लगा, यहां सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, वहां वर्ब ने अपना एस छोड़ दिया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ब जो सिंगुलर होता है अपने साथ एस लेके चलता है एक्स्ट्रा, ताकि अगर कभी सब्जेक्ट को प्लूरल बनना हो तो वो अपना एस उसे दे दे और खुद प्लूरल बन जाए। समझे? बहुत ही सिंपल रूल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। वर्ब जो है जब उसमें एस लगा हो तो वो सिंगुलर होगा, और वर्ब में जब एस नहीं लगा हो तो वो प्लूरल होगा। और सब्जेक्ट में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जब सब्जेक्ट में एस ना लगा हो तो वो सिंगुलर होगा, और जब सब्जेक्ट में एस लगा हो तो वो प्लूरल होगा। इसीलिए when you say the boys, you need to use read instead of reads, because that will be grammatically incorrect. With me so far? Simple enough? Good. It is fairly simple. All we have to do is remember singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. देखा कितना सिंपल है? Singular form, singular subject, plural form, plural subject. चलिए आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप सब लोग उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दें। When do we use does and when do we use don't? I'll wait here. You can pause this video and type in the comment section, when do you think we should use does and when do you think we should use don't? ठीक है, चलिए मैं वेट कर रहा हूँ। Good. So those who have done it, great. Those who are waiting for an answer, let me tell you. मैं आपको एक hint देता हूँ पहले, and then let's see if you get it. Okay? Does is a singular form of verb, and don't is a plural form of verb. Okay? कुछ hint मिला, समझ में आया? Okay? Does pronouns के साथ यूज करते हैं, तो कौन से pronoun के साथ आप यूज करेंगे? Absolutely, he and she. Those who have said he and she are in the comment section. Kudos, you got it. He is the right answer. So he or she के साथ हम
डज यूज करते हैं, एंड बाकी प्लूरल वर्ब्स के बाकी प्लूरल प्रोनाउंस के साथ, जो प्लूरल प्रोनाउंस है उनके साथ हम डोंट यूज करते हैं। जैसे कि he doesn't know how to make an omelette. Now observe, he जो है singular pronoun है, hence does लगेगा। Similarly, अगर हम इसको दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल बताता है they don't know how to make an omelette. Now they is a plural pronoun and hence don't verb लगेगा। Similarly, you can also see it this way. I don't know how to make an omelette. I जो कि plural form of pronoun बनेगा, इसलिए हम don't use करेंगे। I doesn't know will be wrong English. समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं। Does is a singular form of verb, hence जो pronoun लगेगा वो भी singular subject होगा, which is he or she. लेकिन don't जो है वो plural form of verb है, इसीलिए उसके साथ हम plural form of pronoun use करेंगे। I, you, they, them. Okay? Make sense? Making sense, everybody? Good. Let's move on. Now, there are other singular forms as well besides he and she, जिसके साथ हम does use कर सकते हैं। वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ओके? कुछ एक चीज़ें हम मास्टर क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे बताइए कौन कौन से और सिंगुलर प्रोनाउंस है जिसके साथ हम does यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, if two subjects are connected with and are considered plural. and पता है ना क्या है? किसी को याद है? What is and? Conjunction, absolutely, conjunction. So if two subjects are connected with and are considered plural. Example लिखते हैं एक। Mom and dad are coming for dinner. Okay, now observe, there are two subjects here, mom and dad, but because they are joined together with a conjunction which is an and, they become plural, and hence the verb would now be plural. So it will be mom and dad are coming to dinner. देखिए, mom अलग से और dad अलग से singular है, yes, पर जब वो दोनों combine होते हैं तो plural हो जाता है ना, क्योंकि parents are plural, isn't it? So mom and dad become plural subjects because वो join है conjunction से। समझ में आया क्यों जरूरी था हमारे लिए वो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना? लेकिन रूल अभी भी सेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 3, if two subjects are connected with a conjunction, ये जो कंजंक्शन है ये पहले वाले से डिफरेंट है, ये एंड वाला कंजंक्शन नहीं है, ये कंजंक्शन है नीदर नॉर वाला। Neither the teachers nor the students are going to attend the assembly today. अब गौर करने की बात यहाँ पे जो है वो ये है, teachers and students. Okay? Teacher singular है, students plural है। तो इसीलिए जब एक कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट होता है ना, उसके हिसाब से वर्ब अपनी फॉर्म ले लेता है या शेप ले लेता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट पर स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसीलिए आर आएगा, क्योंकि हालांकि दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन क्लोजेस्ट टू द वर्ब इज स्टूडेंट्स, हेंस द वर्ब विल चूज फॉर्म ऑफ द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। और हमारा रूल नंबर 1 क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। वेरी गुड, राइट? तो इसीलिए अगर नीदर नॉर आप यूज करते हैं और सेंटेंस के अंदर, तो जो क्लोजेस्ट होगा सब्जेक्ट वर्ब के, वर्ब उसके हिसाब से अपना फॉर्म ले लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा आपको समझ में, आप इसे पॉज कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स मास्टरमाइंड क्लास तो है ही, तो आप उसमें मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
if two subjects are connected with conjunction. अब we are still on rule number 3 और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको उलट देंगे। जो हमने यहां देखा था इस सब्जेक्ट में, टीचर्स नॉर द स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस को जरा उल्टा करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। नीदर स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज गोइंग टू अटेंड द असेंबली टुडे। देखा आपने, हमने क्या डिस्कस किया था अभी, जो क्लोजेस्ट होगा वर्ब के, वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उस सब्जेक्ट के हिसाब से अपना फॉर्म या शेप ले लेगा। तो यहां पे क्या हुआ, द स्टूडेंट्स पहले आया, सो द नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, एंड हेंस द वर्ब इज गोइंग टू बी इज गोइंग टू अटेंड द असेंबली। अगेन नीदर नॉर में हमेशा याद रखिएगा क्लोजेस्ट टू द वर्ब जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब अपना फॉर्म लेगा। एक बार फिर से देखते हैं, ऑब्जर्व द टू सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड द वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म एज पर द क्लोजेस्ट subject, which is noun, of course, closest subject, which is teacher, yes, and hence the verb will be used as is. Very good. With me so far? देखिए, ऐसे समझ लिया 3 रूल्स, पर रूल अभी भी सेम है। क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। कहा था ना बहुत सिंपल है सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन तब भी मैंने देखा है that most of the people make mistake in subject verb, and the reason why they make is because the rules are not really clear. Now imagine if the rules are clear, why would you not speak correctly? Now that you're learning, you have to commit to this, and you have to make a commitment to yourself that I will speak correctly because now I know. कल तक आपको नहीं पता था पर अब आपको पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, इफ देयर इज अ फ्रेज बिटवीन टू सब्जेक्ट। ना ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है। अगर दो सब्जेक्ट के बीच में एक फ्रेज आ जाता है तो क्या होगा, ओके चलिए देखते हैं। माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर चिल्ड्रन इज कमिंग टुमारो। देखा यार, बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले बारे में था जो कंजंक्शन था उसमें जो क्लोजेस्ट टू द सब्जेक्ट होगा वर्ब के, वर्ब उसके हिसाब से चेंज होगा, लेकिन फ्रेज जब आ जाता है तो इसके तेवर चढ़ जाते हैं। तो ये कहता है नहीं नहीं भाई, हम तो अब चेंज करेंगे। सो वर्ब क्या करेगा, द फर्स्ट सब्जेक्ट व्हिच इज हियर माय सिस्टर, सो सिस्टर इज द सब्जेक्ट अलोंग विद द चिल्ड्रन। नाउ अलोंग विद, जब भी ये फ्रेज आएगा अलोंग विद, सो सब्जेक्ट जो सॉरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट जो पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से फॉर्म चेंज करेगा। देखिए अगेन, ऑब्जर्व द टू सब्जेक्ट सिस्टर एंड चिल्ड्रन। नाउ लुक, ऑब्जर्व द वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म टू द फर्स्ट सब्जेक्ट व्हिच इज सिस्टर। फ्रेज क्या है यहाँ पे, अलोंग विद। कंफ्यूज मत होइए, इसको दोबारा सुन लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है। रूल अभी भी वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, बस यहाँ पे एक्सेप्शंस बन रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस बनते जा रहे हैं। तो पहले में जब कंजंक्शन आता है तब क्लोजेस्ट टू जो होगा उसके हिसाब से होगा, लेकिन अगर फ्रेज आ जाता है तो जो पहला वाला था सब्जेक्ट उसके हिसाब से चेंज होगा। एक और एग्जाम्पल देके समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, माई पेरेंट्स एज वेल एज देयर डॉग आर कमिंग। Now R क्यों आया? Any guesses? Absolutely. Those who are saying because parents पहले आया और parent जो है एक सब्जेक्ट है, इसीलिए R, क्योंकि parent जो है plural सब्जेक्ट है, ओके। यहां पे हमने यूज किया as well as, और पहले में जो हमने यूज किया था वो था along with। समझ रहे हैं? जब भी फ्रेज आएगा दो सब्जेक्ट के बीच में तो वर्ब बाय डिफॉल्ट पहले सब्जेक्ट का फॉर्म लेगा, और अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो प्लूरल हो जाएगा। विद मी सो फार? गुड गुड। दोज हु आर विद मी सो फार, टाइप इन द कमेंट सेक्शन आई एम विद यू। Type in the comment section, I am with you. Come on, let's do this. This is important, okay? जो आप लिखते हैं वो important है, तो लिखिए वहां पे I am with you, and we will move ahead to rule number 5. I'm sorry, एक और है, अच्छा एक और है जो मैंने आपके लिखा था।
ये है along with, और यहाँ पे भी हमने जो यूज किया है वो ही किया है. देखिए, she along with her friend is going to attend the party. अब ये तो खैर आपको पता लग गया होगा बिकॉज यही हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था. यहाँ पे क्या हुआ, she जो है क्या बना, she is your first subject. अगर she first subject हुआ तो is लाजमी है बिकॉज वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट की फॉर्म लेगा. ठीक है ना? वेरी गुड. लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 5. सिंगुलर प्रोनाउंस, सिंगुलर वर्ब. आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था और मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आप मुझे बताइए कौन कौन से प्रोनाउंस में आएगा, वो मास्टर क्लास में. लेकिन आपको एक हिंट दे रहा हूं तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा, लेकिन देयर आर मोर, सो वी विल डिस्कस इन मास्टर क्लास एज वेल. ठीक है ना? ये देखिए एग्जांपल्स: ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी एंड समवन. इन सब के साथ जो है हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे बिकॉज ये सिंगुलर प्रोनाउन है. Of course, he and she as well. So each of my daughter is proficient in the language. Each of my daughter. अब ये क्यों? Because जो प्रोनाउन है हमारा यहाँ पे each वो सिंगुलर है, इसीलिए हमारा जो वर्ब है वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली अपना शेप या फॉर्म लेगा, इसीलिए is. Daughters, which is a plural subject, would not have any effect on the verb because हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया है. ठीक है? एक बार और देखते हैं. अब ये देखिए, यहां पे हम यूज करेंगे एवरीवन. ठीक है? एवरीवन हु नोज माय सन्स इज इम्प्रेस्ड बाय देम. अब देखिए, एवरीवन सिंगुलर प्रोनाउन है और क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है इसीलिए यहां पे हमने जो वर्ब यूज किया है वो किया है इज एंड नॉट आर, इवन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय सन्स. ठीक है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं आपको समझाने के लिए सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब का. ओके, अब हम यूज करते हैं someone. लाइक someone has been stealing my lunch. someone has been stealing my lunch. Observe, जो प्रोनाउन है यहाँ पे क्या यूज हुआ है, someone. someone जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है. अब क्योंकि वो सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब क्या होगा, ऑब्वियसली सिंगुलर, इसीलिए हम यूज करेंगे someone has and not someone have. have plural है. With me so far? With me so far? Good, 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 very good, very good. Let's move ahead. So and don't worry, अगर आपको लग रहा है हम तेज जा रहे हैं, again pause this video, go back, and not to forget we have tests available on subject verb. इन्हीं रूल्स के हिसाब से टेस्ट होगा and don't worry, बहुत सारे टेस्ट हैं. ओके, मैंने इतने टेस्ट और इतने सारे वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन के रखे हैं ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कभी भी जाने की जरूरत नहीं है. देयर आर ओवर 2000 वर्ड्स जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो इसमें मैं आपको बनाएंगे, एंड टेस्ट फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फॉर सब्जेक्ट वर्ब मोर देन डजन. आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और जाके टेस्ट करने की या समझने की. एक बार आपने ये कोर्स कर लिया कंप्लीट एंड टेस्ट कर लिया कंप्लीट, मास्टरमाइंड क्लास आप अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, देयर इज नो वे दैट यू वुड नॉट लर्न द लैंग्वेज. है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. रूल नंबर 6. अब ये वाला जो है रूल, इसमें आपको थोड़ी सी अटेंशन पे करनी है. ठीक है ना? वैसे बाकी जो रूल्स हैं सेम ही है वो, लेकिन फर्स्ट जो हमारा रूल चल रहा है वो अभी भी चलेगा. दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. नाउ noun after the word of portion decides the verb. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जो एग्जाम्पल है पहले देख लीजिए. परसेंट जो है, फ्रैक्शन है, पार्ट, मेजॉरिटी, जब ये सब यूज होते हैं सेंटेंस के अंदर तो क्या होता है? 50% of pies were destroyed, not are but were destroyed because we are talking about pies. Now pies जो है वो बन गया noun और plural है. 50% of pies were destroyed while transporting them. pies. Now 50% जो है, और हम आगे जो रूल नंबर 7 है जब मैं इसको डिस्कस करूंगा तब 50% आपको समझ आएगा कि क्यों नहीं हम चेंज करते. लेकिन वर्ड आफ्टर ऑफ पोर्शन डिसाइड्स, अगर आपने यहाँ लिखा होता 50% ऑफ, देखिए दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं, मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, दूसरे एग्जाम्पल को देखिए और आपको समझ में आएगा. जैसे कि एक्सक्यूज मी, ये देखिए, सम पार्ट ऑफ इंडियाज
population has been vaccinated. Okay, चल ही रहा है हमारा vaccination program, right? And majority of course हो रहा है. So some part of India's population has been vaccinated. Now why? Because the word population is singular. Grammatically जो है वो single entity होता है population. इसीलिए some part of India's population has been vaccinated is correct. But if you write some part of India's population have been, that will be incorrect because again grammatically population जो है single entity है, इसीलिए singular है. ठीक है? Pause this if you don't understand. Go back, listen to it again, appear for the test. It'll be clear to you. Let's move on to rule number 7. We are very very close, ladies and gentlemen. Okay, हमारा दिन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. वी आर वेरी क्लोज. और बहुत सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स, ओके, ताकि आपको समझ में आ सके इजीली. नाउ लास्ट रूल जो बचता है इसका वो है रूल नंबर 7. व्हाट इज रूल नंबर 7? टाइम, मनी एंड पीरियड ऑफ टाइम आर ऑलवेज सिंगुलर. टाइम, मनी एंड पीरियड ऑफ टाइम आर ऑलवेज सिंगुलर. फॉर इंस्टेंस देखिए, 1,000 rupees is a high price to pay. Now 1,000, of course if you look at it, is plural, but because it's money, hence it's singular. So 1,000 rupees is and not are. 1,000 rupees is a high price to pay. Okay, हम में से बहुत लोग बहुत गलत बोलते थे पहले सब्जेक्ट वर्ब क्योंकि पता नहीं था, लेकिन अब आपके पास कोई एक्सक्यूज बचेगा नहीं कि आपको क्यों नहीं आता. ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको सब बता रहा हूं. तो आपको अब जो है दृढ़ निश्चय कर लीजिए दैट फ्रॉम नाउ ऑन मेक अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ, आई विल स्पीक करेक्टली. ठीक है, क्योंकि सारे रूल्स अब आपको पता लगते जा रहे हैं. नाउ यू नो मोर इन दैट प्लेस वेयर इन यू डिड नॉट नो. सो इग्नोरेंस इज नो लॉन्गर अ ब्लिस. समझ रहे हैं? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, ये देखिए, अब फर्स्ट कीजिए एक पीरियड लेते हैं. ठीक है, 5 years is a long time. Now even though 5, of course you look at it and say 5 तो भाई ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, लेकिन क्योंकि पीरियड है इसीलिए सिंगुलर है. 5 years is a long time and not 5 years are a long time, है ना? ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे. ठीक है, अब टाइम का देखते हैं. 10-15 hours is when we will meet. 10:15 बजे. 10-15 hours, ओके. और जो इसको नॉर्मल भाषा में बोला जाता है वो बोला जाता है 10-15 PM या AM whatever, लेकिन यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो है 10-15 hours is when we will meet. 10-15, okay. Even though 10-15 hours is singular, because even though उसको अलग से देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन क्योंकि वो टाइम के लिए है इसीलिए सिंगुलर है. सिंगुलर के हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. समझ गए? अगेन गोइंग बैक टू द फर्स्ट वन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. ठीक है, गुड. एक रिकैप ले लेते हैं. ठीक है, रिकैप में हम क्या करेंगे, वो सारे रूल्स को एक बार फिर से देख लेंगे और उसके बाद आप पॉज करके या वापस जा सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं, रूल्स को एक बार फिर से समझेंगे और अगर सही समझ में आता है मास्टरमाइंड क्लास में मुझसे पूछेंगे. ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं. रूल नंबर 1, रिमेंबर ये ही रूल है जो सारे बाकी रूल्स को गवर्न करेगा. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, जैसे हमने डिस्कस किया था. द डॉग चेजेस द कैट और द डॉग्स चेज द कैट. ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज आई थिंक ये बहुत बार हो चुका है, तो आपको पता है. अब तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गया होगा ये. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. गुड. नंबर 2, अगर हमने कंजंक्शन यूज किया है एंड, तो क्या हो जाता है, दो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाते हैं. तो मॉम एंड डैड आर कमिंग फॉर डिनर, है ना. रूल नंबर 3, if two subjects connected with a conjunction. अब ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ. neither teacher nor the students are. now ये वही बात है जो हम डिस्कस कर रहे थे, है ना. जो क्लोजेस्ट होगा सब्जेक्ट वर्ब के, वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज करेगा. यहाँ पे neither the teacher nor the students are going to attend the assembly today.
ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, लेट्स मूव ऑन। रूल नंबर 4। अब ये रूल नंबर 4 जो था वो फ्रेज के बारे में था। रिमेंबर, जो फ्रेज आता है, जब फ्रेज आएगा तो क्या करेंगे, जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज करेगा। कंजंक्शन में जो क्लोजेस्ट है उसके हिसाब से करेगा, फ्रेज में जो पहला सब्जेक्ट है वो उसके हिसाब से फॉर्म चेंज करेगा। माई सिस्टर अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन इज कमिंग टुमारो, है ना, ये डिस्कस किया था ना, फ्रेज है यहाँ पे अलॉन्ग विद। रूल नंबर 5, सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब। ये तो बहुत सिंपल, हमने अभी डिस्कस किया है, तो और आपको हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये फर्स्ट रूल से ही कॉपी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हेंस सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ माई डॉटर इज प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, ठीक है, ओके। Want to rule number 6, noun after words of proportion decides the verb। ये वही है जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ के बाद। जैसे अगर हम यहाँ इस सेंटेंस को देखते हैं, 50% of pies were destroyed while transporting। Why were? Because ऑफ के बाद क्या आया, pies। अगर ऑफ के बाद population आता है which is grammatically single entity, तो ये चेंज हो जाता है ना, याद है, हमने अभी डिस्कस किया है। Okay, good. Last. Time, money and period of time are always singular. 1,000 rupees is a high price to pay. है ना? तो 1,000 ऑब्जर्व कीजिए, 1,000 जो है वो प्लूरल लिखता है, लेकिन क्योंकि मनी है इसीलिए सिंगुलर होगा। हेंस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, एब्सोल्युटली। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ब्रिलियंट, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। So now we are ready for our assessment, isn't it? Isn't it? So there are tons of tests for you and I hope you are ready, okay? Because वो जो टेस्ट बने हैं वो इसीलिए बने हैं कि जो हम यहाँ सीख रहे हैं, जो हम यहाँ लर्न एंड अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिस कर सके। Remember the 3 keys. Remember 3 keys? Learn, understand, practice. Absolutely. Learn, understand, practice. Learn, understand, practice. तो जो हमने लर्न किया उसको भी हमने अंडरस्टैंड किया, अब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। ये 3 चीजें ही करनी है आपको लगातार, बार बार, ताकि आपको समझ में आए। रट्टा नहीं लगाना है, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? लर्न, अंडरस्टैंड एंड देन प्रैक्टिस। गुड। We are almost done with the day. So what have we covered today? Well, we have covered parts of speech. Yay! And we have covered subject verb. Good job, guys. Good job. Very good. Very good. Those who have attended this in one day, brilliant job. Those who haven't, it's okay. Take your pace. Remember, आपका pace जरूरी है. You need to understand आप किस pace पे उसको understand और learn कर सकते हैं. ठीक है? तो कोई जल्दबाजी नहीं है. Take your own sweet time. यहाँ पे हमारे पास टाइम भी है, असेसमेंट्स भी हैं, बहुत कुछ है आपके लिए करने को। तो अपने पेस पे सीखिए, लेकिन अगर आपको जल्दी सीखना है तो जल्दी करना पड़ेगा, है ना। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट वर्ब आर डन। नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद? सो हम कल करेंगे टेंसेस एंड इवेंचुअली फ्लुएंसी। Thank you so much, ladies and gentlemen. Pat yourself on the back. You have done phenomenally well today. A day which is spent in learning is day well spent. A day which is spent in learning is a day well spent. On that note, I thank you for your time. Thank you for being with us. Thank you for learning with me. और हम मिलेंगे कल फिर से to discuss about tenses and then eventually to fluency.